أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ سسٹرز. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. آج الحمدللہ ہماری 3rd کلاس ہے, الحمدللہ 1C, یعنی کہ ہمارا صفحہ 1 اور اشارہ C. تو اب تک جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ ہم نے QC1 میں سورہ فاتحہ کمپلیٹ کی تھی, ایک طرح سے ہم نے اعادہ کر لیا. تو آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے, اور ایک یہ جو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کورس کو سورہ بقرہ کا کورس بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ہم نے QC6 تک پہنچتے انشاءاللہ سورہ بقرہ کمپلیٹ کر لینی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب انشاءاللہ QC6 QC7 تک انشاءاللہ پورا قرآن سیکھیں گے. نیت کرتے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. کیونکہ یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے قرآن سیکھنے کا, قرآن فہمی کا, اسے اب ہم نے رکنے نہیں دینا. یہ سلسلہ اب روکنا نہیں ہے, کیونکہ بہت ہم نے وقت گزار لیا قرآن مجید کو صرف دیکھ دیکھ کے پڑھنا, یا ہم نے جو زبانی یاد کر لیا, دعاؤں میں پڑھ لیا, وظیفوں کی طرح پڑھ لیا, ذکر کی طرح پڑھ لیا. اب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے, ہر حرف کو سمجھیں گے. لفظ تو بات کی بات ہے, ہم ہر حرف کو بھی سمجھیں گے کہ ایک لفظ کیسے بنتا ہے اور کس طرح سے ہم اسے دیکھیں گے کہ اس کی کنسٹرکشن کیسی ہوئی ہے, اسے کھولیں گے, دوبارہ جوڑیں گے, ٹکڑے بنائیں گے. اس طرح سے کرتے ہم انشاءاللہ خود ترجمہ بنانے کے قابل ہوں گے. خود ترجمہ بنانے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلے سے ترجمے بنے ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا ہم ان کو چھوڑ دیں. خود بنانے سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی آیات جب کسی کے اسٹیٹس پر یا کسی کی وال پر اس طرح سے نظر آتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. جن جن الفاظ کے ہمیں ترجمے آ جاتے ہیں, جن کے ہمیں پورے پورے ٹیبل آ جاتے ہیں, یا جس کو ہم پہچان لیتے ہیں یہاں پہ ال ہے, تنوین ہے, تو یہ اسماء ہے. اور اگر ہمیں کوئی فعل کی چابی میں سے کوئی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ نشانی کسی صیغے کی نظر آ رہی ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذکر ہے, مؤنث ہے, واحد ہے, جمع ہے, تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اتنا اچھا ایک پلیٹ فارم دیا, ایک موقع دیا کہ ہم قرآن کو سمجھیں. تو قرآن کا یہ سفر اب انشاءاللہ رکنا نہیں چاہیے. ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. ہم نے پارہ نمبر 1 یعنی کہ پہلا پارہ. اچھا جی, کوئی مجھے ذرا پہلے پارہ کا نام بتائیں. نام بھی ہے نا پاروں کے؟ الف لام میم. الحمدللہ جی, الحمدللہ. ہم نے پہلے پارے میں آپ دیکھیے گا کہ اس کو اس طرح سے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, یعنی کہ 20 صفحات, اور اس میں سے ہر ایک پارہ ہم نے ہر ایک حصہ ہم نے 5 پیجز میں ڈیوائڈ کر دیا. ان 5 پیجز کو مزید پھر 4 حصوں میں بانٹا تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے, سیکھنا آسان ہو جائے, سمجھنا آسان ہو. اور کوشش کیجئے گا کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں یہ ساتھ ساتھ ہم حفظ بھی کرتے جائیں. یہاں ہم کیا سیکھیں گے کہ ہم اپنے صفحہ نمبر 4 تک, یعنی کہ جو ہمارے صفحہ نمبر 4 تک ہم نے ہدایت کی بات سیکھنی ہے, اور اس کے بعد صفحہ نمبر 5 پر پہنچتے ہم انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے ہدایت یافتہ شخص ہیں, ہم ان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم QC3 میں بنی اسرائیل جن کو ہدایت تو ملی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی, یہ پورا مکمل پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارا جو QC4 ہوگا اس میں اور QC5 کے شروع میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے جائیں گے. اور جب ہم 18ویں صفحے پر پہنچیں گے تو ہم سیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے بارے میں تمام ان کا جو سفر تھا
جو ان کی مشکلات تھیں اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے. تو انشاءاللہ ہمارا QC5 تک ہمارا پہلا پارا جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا ہم یہ عنوانات یہ موضوعات سیکھ جائیں گے. اب یہ جو ہمارا مصحف ہے, مصحف بھی کہہ دیتے ہیں مصحف بھی, تو یہ جب ہم اس کو کھولیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو دو صفحات کو ہم نے اس طرح سے لکھے گا ایسے, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے جب ہم کھولتے ہیں تو اس کو اسی طرح سے جوڑا بنا لیا گیا. تو اب اس میں سے ہم نے یہ کیا کہ جو پہلا والا اس پہ صرف سورہ فاتحہ لکھی تھی اس کو ملا کے پورا ایک اشارہ بنا لیا, اور ہم نے یہ سارا کچھ گرامر اسماء افعال کے ساتھ سیکھنا ہے. اب ہم یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ سورہ بقرہ. تو سورہ بقرہ کے متعلق یہ ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ مکی اور مدنی سورتوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ تھوڑا سا مطلب ٹیسٹ نہیں ہے یہ, مکی صورتوں میں توحید کو واضح کیا جاتا ہے, اور مدنی صورتوں میں جس احکامات دیے جاتے ہیں. ہاں جی, جو خاص طور پر نظام زندگی کے. اور ایک جو اہم اس میں چیز ہم بتاتے ہیں کہ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے, ہم نے کہہ دیا. اب یہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد مدینہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی اس کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی, چاہے تب آپ مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے, کچھ آیات ایسی تھی کیونکہ یہ پوری سورہ اسی طرح سے نہیں اتر کرتی تھی نا, تو جو آیات ہجرت کے بعد اتری ان ساری صورتوں کو, ان ساری سورہ کو ہم کہتے ہیں یہ مدنی سورہ ہیں. اچھا جی, سورہ بقرہ کا جو اہم ایک پیغام وہ کیا ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ نائب کیسا ہو, ایک سچا مسلمان کیسے بنا جائے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جب اللہ رب العزت نے بنایا اس کورس کے, اسی میں انشاءاللہ آخری جو ہم صفحات پڑھیں گے اس میں ہم بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کس لیے بھیجا. تو یہ سارے کے سارے عنوانات ہم سیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ ہم سیکھیں گے کہ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی, بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی, بنی اسرائیل نے قدر نہیں کی. تو پھر اس کے بارے میں جب ہم بنی اسرائیل والے موضوعات پڑھیں گے تو ہم ان کی سزائیں بھی دیکھیں گے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرادت خاسئین بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی گئی جو انسانیت کے امام ہے کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی کہ فرما بردار تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے QC1 میں بھی پڑھا تھا نا, جب ہم نے درود شریف کا ترجمہ وغیرہ پڑھا تھا, تو ہم نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی مقبولیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اے اللہ عطا فرمائیے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً دنیا کے تمام مذاہب والے مانتے ہیں. تو اب بات کی گئی ہے مسلمانوں کی کہ اے مسلمانوں اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی اور اس میں ایک ذمہ داری ہے, اس میں ایک پیغام ہے, لہذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرنی شروع کرنی ہے. انشاءاللہ زندگی ہے گزر جائے گی, گزرتی گزرتی گزر ہی جائے گی, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سچے اور حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کریں. اسے بھی ہم نے سورہ فاتحہ سے سیکھا کہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے اپنے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صالحین میں شامل ہو سکیں. اور یہ کورس ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آگے بڑھے گا. اب اس میں دیکھیے ہدایت متقین کافرین کے, پھر قصہ ہے علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا, پھر بنی اسرائیل کے بارے میں, پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, اور اس کے بعد دیکھیے گا قبلہ کی تبدیلی, قصاص, روزے, حج, نکاح, طلاق, انفاق, دین, یعنی کہ ہر طرح کے موضوعات سورہ بقرہ میں ہمیں ملیں گے. اچھا جی, اس کی فضیلت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن سورتیں یعنی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو, کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں گے یا 2 سائبان ہوں گے. تو کون ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ روز بروز قیامت ہمیں یہ چھاؤں, یہ سائبان میسر ہو. اور ایک اور چیز بھی اس میں بتا دی جاتی ہے کہ جیسے مشکل بھی لگتا ہے تھوڑا سا, تو کم سے کم جو آخری جو آیات ہیں, کہنے لگی تھی, جو آخری آیات ہیں آمن الرسول سے لے کے, کم از کم اس کو پڑھنے کی روٹین انشاءاللہ بنانی ہے.
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। यानी कि इसके बारे में अब ये एक वईद भी बताई गई कि अगर हम नहीं पढ़ते तो अपने घरों को इसी तरह से समझे कि जैसे कब्रिस्तान है, यानी कि वीरानी को महसूस करें। शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। और ये कोई हमारी आपकी बातें नहीं है, ये हदीस हैं, इनके हवाले दे दिए गए, आप इनको खुद से सर्च भी कर सकते हैं कि ये अहादीस कहाँ है। बल्कि जब आप सर्च करती हैं आपको इन्हीं मौजूआत पर और बहुत सारी अहादीस भी पढ़ने को मिलती हैं। और हमारा इसी तरह से दाएं हाथ के इशारे शुरू हुए हैं। हमारा पहला जो पहली फिंगर का इशारा अभी हमने ये जो सिस्टर रिवीजन करवा रही थी उसमें भी हमने दोहराए थे कि दुआ, तारीफ, हिदायत और सिफात। अगले जो इशारे हैं जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम बार बार रिपीट करेंगे इन्हें, तो ये इंशाल्लाह याद भी हो जाएगा और हम इनको रिलेट करना भी सीख लेंगे। और ये जो रिलेट करने वाला काम हम करेंगे, कोशिश किया करें कि जिसे जो मुनासिब लगे, सूटेबल लगे आया मुबारका, वो ग्रुप में बताएं और बाकी लोग भी देखें कि वाकई ये इससे रिलेट हो रही है। तो इस तरह से आपकी आपस में बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो हमारी जो पहले दो इशारे थे वो हमने सूरह फातिहा में कंप्लीट कर लिए। अल्लाह ताला की तारीफ हमने देखा कि कहाँ पर की गई तारीफ, जब हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसी तरह से दूसरा जो हमारा इशारा था हिदायत की दुआ, दुआ कहाँ पर थी, हमने कहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी कि यहाँ पर हिदायत दे सीधे रास्ते की। उसके बाद आगे की दुआएं भी शामिल हो गई कि अच्छे लोगों की पैरवी, बुरे लोगों से दूरी। आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे अलिफ लाम मीम से, यानी कि मुत्तकियों के लिए हिदायत। अब आप इसको बार बार इस तरह से दोहराया करें कि जैसे आते जाते उठते बैठते इशारे एक दफा दोहरा लिए, तारीफ दुआ हिदायत सिफात, तारीफ दुआ हिदायत सिफात। इंशाल्लाह जब ये इशारे याद हो जाएंगे तो इसके साथ हमें फौरन हमारे जहन में आयात भी आ जाएंगी। चलिए हम इसको अब देखते हैं कि अब हम 4 हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे। तारुफ, तर्जुमा और शरह, असबाग, दुआ, प्लान, इसी तरह से अस्मा और अफआल। और इसी स्टाइल पर हम इंशाल्लाह हर इशारे को सीखते चले जाएंगे। एक मर्तबा सब मिलकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरन सिस्टर्स। अच्छा जी, हम यहाँ पर देखते हैं कि सूरह बकरा में शुरू में ही क्या बताया गया कि कुरान मजीद में कोई शक नहीं, कुरान हिदायत की किताब है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। कुरान कितना आसान है ये हम देखेंगे कि आप देखिए जो हमारी पहली आयत मुबारक है, पहली लाइन है, इसमें हमें सिर्फ 2 नए अल्फाज मिल रहे हैं और वो भी ज्यादा नए नहीं है, सिविलियन है हम इन अल्फाज से। और इसी तरह से जो हमारी दूसरी लाइन इसमें यानी कि 3 हमारी एक जो आयत मुबारक या 2 आयत कह सकते हैं क्योंकि एक मुकत्तियात वाली आयत है, 2 आयत में हमारे पास 3 टोटल 3 नए अल्फाज है। ये जो हल्का सा कलर किया गया है ये हमें बता रहा है कि ये थोड़े से नए होंगे, लेकिन इनको हम कैसे सीख लेंगे, अल्फाज के मानी समझेंगे और ग्रामर। इससे फायदा ये होगा कि हम इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से इन अल्फाज को याद भी रख सकेंगे और इनसे मिलते जुलते जो अल्फाज कुरान मजीद में आएंगे हम उनको भी समझ लेंगे इंशाअल्लाह। अब हम देखते हैं इसका तर्जुमा और मुख्तसर सी शरह। और अब आप देखेंगे जैसे ही कोई नया फिक्रा नई बात आएगी तो उसकी हम 2 मरतबा प्रैक्टिस भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। हम इसको अब बाकायदा शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तियात हैं। हमने QC1 में भी थोड़ा सा इसको टच किया था। हमने देखा था कि इन अल्फाज को पता करना यानी कि तोड़ तोड़ कर पढ़ना, इकट्ठा नहीं पढ़ना। इनके क्या माना है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हमने इनको इसी तरह से पढ़ना है जैसे हमें पढ़ने का हुक्म है। ज़ालिका ये किताब है। अब ज़ालिका में हमने ये वाला तर्जुमा किया तो कोई सवाल जहन में उठता है कि यहाँ ज़ालिका का तर्जुमा तो हमने कुछ और नहीं पढ़ा था। हाँ जी, वो
ہم نے وہ ترجمہ کیا تھا. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے. تو جہاں پر اس طرح سے ترجمہ کیا جائے اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی تاکید ہے, اہمیت دی گئی ہے, الکتاب کہا گیا, خاص کتاب کہا گیا, یعنی کہ یہی وہ کتاب ہے, یہ کتاب ہے, نہیں کوئی شک اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی, ایمفیسس کے لیے, زور دینے کے لیے, تاکید کے لیے ان الفاظ کو قرآن مجید میں اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے تاکہ الکتاب جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے اسم خاص کر دیا, اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید کے بارے میں, خاص کتاب کے بارے میں اب آگے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے. اچھا جی, لا ریب, لا ریب لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا, لا ریب سنا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے, نہیں ہے کوئی شک. اسی طرح سے ایک نام رکھا جاتا ہے مافیا. اب مافیا کیسے رکھتے ہیں, مافیہا, 3 الفاظ ملاتے ہیں پھر وہ مافیہا سے مافیا مافیا ہو جاتا ہے. تو جب بھی بچوں کے نام رکھیں صرف یہ نہیں دیکھیں کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں تو نام رکھیں, ان کے معنی پر بھی غور کرنا ہے انشاءاللہ. اور جو کوئی رکھتے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ اس طرح سے اس کے یہ معنی بن رہے ہیں. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک ایک لفظ کو. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الف لام میم. ہم نے کہا کہ اس کے معنی ہم نہیں جانتے, ان الفاظ کو ہم اسی طرح سے پڑھ کے تو ہم اپنے اگلی جو آیت مبارکہ اس پہ چلے جاتے ہیں. اس میں ہمارا اشارہ کیا ہوگا, متقیوں کے لیے ہدایت. اب یہ جو لفظ ہے ہدایت, ٹھیک ہے, ہدایت کو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد متقین کو اپنے ذہن میں رکھیے. اب ہے ذالکا, ذالکا یہ اشارہ یہ ہوگا, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو پڑھا تھا ذالکا اولائکا, ان چیزوں کو ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے لا, لا کا مطلب نہیں. ریبا, ریب کیا کہتے ہیں, شک کو, نہیں ہے کوئی شک. اب ہے ہدن, ہدن ہم انشاءاللہ یہ والا پورا ٹیبل کریں گے, پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہدایت, جیسے ہم نے ایک اس سے ملتا جلتا لفظ پڑھا تھا اہدینا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم یہ پورا ٹیبل اپنے QC2 میں پڑھ لیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہ جو 2 زبر ہے تو یہ اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک اسم ہے. تو یہ جو اسم ہے یہ ہمارے ٹیبل میں کہاں فٹ ہوگا. للمتقینا, لی اور المتقینا. اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ لی اور المتقینا یہ اس کے جب ٹکڑے بنائیں گے تو 2 ٹکڑے بن جائیں گے. ہم ساتھ ساتھ ٹکڑے بھی دیکھتے جائیں گے. اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ایسی حروف ہیں جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا. اور یہ دیکھیے گا عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا ہے, اور لا ریبہ بھی. اس کے بارے میں ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے, اور اس میں ایک خاص اشارہ بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے. کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا اس میں کوئی کمی نظر آئے تو براہ کرم مطلع کیجیے گا, تاکہ جو ہمارا اگلا ایڈیشن آئے اس میں ہم اس کی تصحیح کر دیں. اب قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے اسی آیت مبارکہ سے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی اب دیکھیے گا پرنٹنگ کی جو غلطی, ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہے, پرنٹنگ وغیرہ کی کوئی غلطی آپ کو نظر آ جائے, پڑھتے ہوئے کچھ نظر آ جائے تو پرنٹنگ کی غلطی ہوگی, ٹھیک ہے. وہ اس کا جو متن ہے, جو اس کا مضمون ہے وہ نہیں بدلے گا. وہ یہ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی زیر زبر پیش اگر وہ تھوڑا مس کر گئے تو یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے. اور یہ اسی طرح سے ہمارے پاس آتے بھی نہیں ہے, یہ اسی طرح سے جو نمونے, یہ کتابیں, یہ مصحف, یہ ہمارے پاس اسی طرح سے آتے بھی نہیں کہ ادھر سے پرنٹ ہو اور ہمارے پاس ڈائریکٹ پہنچ جائیں. اس کو بار بار دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, ہر چیز کو پڑھا جاتا ہے. لیکن پھر بھی کہیں دیکھیں آپ کو کچھ نظر آئے تو ضرور اس کے پیچھے نمبر بھی دیے گئے تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ اس میں کوئی کمی یا کوئی غلطی ہو سکتی ہے. یہ ہر عیب, ہر غلطی سے پاک ہے, کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے. آگے بات کی گئی ہدی للمتقین, قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کہیں ان سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہاں پر ایک اور بھی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جنہیں یہ ڈر ہے کہ قیامت نافذ ہوگی, یعنی کہ ایک دن ایسا آئے گا مالک یوم الدین, یعنی کہ اس دن جب اللہ رب العزت ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے. اگر کسی شخص کے بعد بہت زیادہ علم ہے, چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو,
لیکن अगर उसमें तकवा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर नहीं है, तो वो शख्स हिदायत पा ही नहीं सकता। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने पॉइंटर निकाल, ये जो सॉरी हाईलाइटर लें और आप हुदन और लिल मुत्तकीन इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। उससे ये फायदा होगा, जब आप ये इशारे के बारे में सोचेंगे इन दो अल्फाज को देखकर याद आ जाएगा, इसमें मुत्तकियों के लिए बात की गई, हिदायत की बात की गई, तो ये इस तरह से हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इशारों के नाम याद रखना। हिदायत में क्या करना है, यानी कि ये हमें देखना है कि अब जो हम कर चुके एहतसाब अपना और जो आगे की हमारी जिंदगी है हमने उसके बारे में प्लान बनाने हैं, और इस तरह से ये इन सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। हमारी जिंदगी में हिदायत सबसे अहम चीज है, और हमें जिंदगी के हर मोड़, हर लम्हा, हर काम में हिदायत की जरूरत है। और इस दुआ को भी हमने शामिल रखना है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक के बगैर ना तो हम नेकी का काम कर सकते हैं और ना ही बुराइयों से बच सकते हैं। और अगर हम हिदायत पर हों तो वाज़े अहदाफ के साथ और बगैर किसी गुमराही के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत सी चीजें हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में किस तरह से शामिल हो गई रिवाजों के नाम पे, तो उन सारी चीजों को भी इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके इसे निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है एकदम से हर चीज को अपनी जिंदगी से रिड्यूस कर देना। तो कोशिश इंशाल्लाह जब हम कोशिश करेंगे, तो हम बार बार कहते हैं जब अल्लाह की तरफ चलकर आते हैं तो अल्लाह हमारी तरफ दौड़ कर आते हैं। तो अपनी कोशिश हमने जारी रखनी है। अब कोई सिस्टर ये पूरा तर्जमा रवानी से जरा पढ़िएगा। मैं पढ़ दूं किसको? ये मैं पढ़ता हूँ। जी एक सिस्टर का हैंड रेज है, जिन्होंने हैंड रेज किया वो पढ़ लें। सिस्टर निखत ने हैंड रेज किया है। सिस्टर जवेरिया से हम कुछ और पूछेंगे। अलिफ लाम मीम ये किताब है, नहीं है कोई शक इसमें, हदायत है परहेजगारों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो हैंड रेज रखिएगा। अभी हम आगे भी कुछ चीजें पूछेंगे। अब बल्कि हम ऐसा करते हैं, अब हम पहले स्लाइड आगे करने से पहले आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा जी, इसमें से अस्मा कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको? किताब, अल किताब, हुदा, मुत्तकीन। और हरूफ, हरूफ अब बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हरूफ बताइएगा। इन सिस्टर ने बता दिया, अब कोई और बताएं। अलिफ लाम मीम। हाँ, ये हरूफ है मुकत्तियात। हाँ, इनको छोड़े जो हरूफ हमने सीखे थे, जिनके हमने पूरे पूरे टेबल भी बनाए हुए हैं। ला, फी और ली। और ली, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये ली ही सुनना चाह रही। अल्हम्दुलिल्लाह। ला भी हुरूफ में आएगा। हाँ जी, ला हमने कहा है कि कुरान मजीद में आने वाले तमाम जो अल्फाज हैं अस्मा होंगे या अफ़आल होंगे, और अगर ये अस्मा भी नहीं है, अफ़आल भी नहीं है, तो इनको हम हुरूफ कहेंगे। ठीक है। और जो अल्फाज है ना कुरान मजीद के, अफ़आल और अस्मा, ज्यादातर ये तीन तीन अल्फाज के साथ मिलकर, तीन तीन हुरूफ के साथ मिलकर बनते हैं। लेकिन ला में देखिए सिर्फ दो ही वर्ड है, और वैसे भी ला नहीं, ये हम आम अपने जो उर्दू वाली भी जुबान, उसमें भी हम कहेंगे कि ये हुरूफ ही है। अब इसका तर्जमा जो है वो अभी सिस्टर ने पढ़ा कि ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारी आज की ये आयत मुबारका यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो अभी हमने पढ़ा है इसमें से हम क्या अपने लिए असबाक निकाल सकते हैं। पहला सबक ये है कि कुरान में कोई शक नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है, और हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए। ये वाजिया कर दिया गया कि डरने वालों के लिए हिदायत है। अब ये जो हमारे पास इंशाअल्लाह हमारे हर लेसन में दुआएं आती हैं, इनको भी हमने सीखना है। कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह याद भी करते रहें, और इनके तर्जुमे पे भी अच्छे से गौर करना है कि हम ये जो दुआएं पढ़ते हैं इनको तर्जुमों के साथ पढ़ने का फायदा ये हो जाता है कि हमें पता चलता है कि हम अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हम हाथ उठाते, अपने हाथ फैलाते हैं, तो हम अपने लिए क्या मांग रहे हैं। हजरत इब्ने मसऊद रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना। ए अल्लाह, बेशक मैं
सवाल करता हूँ तुझसे। अब आप देखिएगा, इन्नी को हम समझ रहे हैं, अल्लाहुम्मा को हमने QC1 में पढ़ा, इन्नी में पता चल गया अपनी तरफ इशारा है। इसी तरह से अस्अलु का, अस्अलु ये इंशाल्लाह टेबल हम अपने इसी QC2 में कर लेंगे। का की हमें समझ आ रही है कि ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ। क्या सवाल करती हूँ? अल हुदा, हुदा को हम उर्दू में भी जानते हैं, ठीक है, हिदायत के बारे में। वत्तु का, ये तकवा से याद रख लीजिए, ठीक है, तकवा। अब ये जो अफाफ है ये थोड़ा सा नया लफ्ज है, अफाफ, पाक दामनी। और बहुत से लोग ये नाम भी रखते हैं। जो नाम रखते हैं, आप में से खानदान में किसी का नाम हो तो आप बताइएगा कि इसका तर्जुमा क्या बनता है, पाक दामनी। और ये जो गिना है, गिना, ये बेनियाजी, इसको हम हजरत उस्मान गनी से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। इस तरह फायदा क्या होगा कि हमें इन अल्फाज के मानी को इस तरह से याद नहीं करना पड़ेगा कि हम रट्टे लगाए, हम उनकी बनावट, उनकी साख्त सीख लेंगे, ठीक है। अब हमारी दुआ क्या होनी चाहिए इन आयात को देख के, इस दुआ को देख के, कि मुझे हमेशा इस किताब को हिदायत की गर्ज से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। सिर्फ ये कि गिनती पूरी करने के लिए हम ना पढ़े कि हमने 2 कुरान पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, इस तरह से नहीं, बल्कि हमें समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमा। प्लान हम क्या बनाएंगे कि इंशाअल्लाह मैं कुरान से हिदायत लेने में अपना वक्त सर्व करूंगी। मैं तकवा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगी। और कोशिश जब की जाती है, दिल से कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह फिर हम जरूर कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह। अब हम देख गिना लेते का हैं मतलब क्या है? गिना। गिना गिना का मतलब क्या है? बेनियाजी। अब आप इसको यहाँ से भी देख लीजिएगा, बेनियाजी कहते हैं। जब हम हजरत उस्मान गनी के बारे में थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा उनकी जिंदगी पे गौर करें कि वो अपने माल से किस तरह बेनियाज थे। उन्होंने अपना माल बेनियाजी से, बेनियाजी इसको कहते हैं कि परवाह ना करना किसी चीज की, इस तरह से कि आपके पास जो माल है आप उसको इस तरह से भी खर्च करें कि यतीमों का उसमें हिस्सा हो, मसाकीन का हिस्सा हो। और इसी तरह से आप अपनी इबादत इस गर्ज से करें कि इसमें कोई सिर्फ ये कि जन्नत का हुसूल नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इसमें ये कि हिदायत वाले पहलू भी हो। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए, ये सारी चीजें मिला के। तो इसमें ये होता है कि बाज़ जहन में आ जाता है ना कि ये जो शैतान है हमारे पीछे लगा हुआ है कि उस नमाज को भी कहा गया है कि उसके बारे में थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जो किसी को दिखाने के लिए खूबसूरत बना ली जाए, बना बना के हम अपना उठना बैठना सजदा वगैरह करें। तो इन सारी चीजों से निकल के बाहर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए खुद को खास कर देना। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, वो किस तरह से बेनियाज है हमने सीखा था कि उन अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि हम सब उसी के मोहताज हैं। ठीक हो क्या सिस्टर? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ का मतलब भी बेनियाज है ना, जी सिस्टर, मैं मतलब कुल अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज हाँ, है, ये तो अल्लाह हाँ, बेनियाजी है। अल्लाह बेनियाज है, बिल्कुल। वो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए समद का लफ्ज यूज करते हैं। जैसे उर्दू में बहुत सारे अल्फाज होते हैं ना, माना एक ही दे रहे होते हैं, लेकिन वो तरह तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो क्या जी? अब इसमें जो अस्मा, अच्छा अस्मा और भी हमने इसमें से देखा कि जैसे हुदन भी एक किस्म है, लेकिन जो हम पहले QC1 में जिनको थोड़ा थोड़ा सा हमने देख लिया, टच किया है, उनको हम नहीं करेंगे, बल्कि जो नए अस्मा आते जाएंगे हम उनको देखते जाएंगे। हम उसकी जमा भी करेंगे, जैसे किताब, इसकी जमा हो जाएगी कुतुब। इसी तरह से जब हम कहेंगे मुत्तकिन, अब आपने मुत्तकिन की 2 जेर को नहीं देखना, ठीक है, आपने इसकी दोनों तरह की जमा बनानी है। ऐसा क्यों करेंगे? ये इंशाल्लाह जब हमारे इस तरह के टेबल आ जाएंगे, जिसमें हम हदा का टेबल पढ़ेंगे, जरा का टेबल पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल से इस चीज पर पूरा फोकस करेंगे कि हम इस बात को समझ सकें कि यहाँ पर मुत्तकिन में 2 जेर तो नजर आ रही है, लेकिन ये कि हमने तो QC1 में कहा था कि मुस्लिमिन और मुस्लिमन की जमा हम मुस्लिमीन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर वाउनून की भी जमा बना ली गई। तो इसको इंशाल्लाह हम अपने उन टेबल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। अच्छा जी, किसी का माइक ऑन है? अच्छा जी, जब आपको कोई क्वेश्चन वगैरह ना करना हो तो अपनी जरा माइक म्यूट रखा करें। सिस्टर रिहाना को सर आपका हैंड रेस है, आपको कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ लीजिए।
नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह तो आगे बढ़ेंगे। नहीं सॉरी सिस्टर, मैंने ना वो पहले हैंड रेज इसलिए किया था कि वो ट्रांसलेशन करने के लिए, तो सॉरी ठीक मैंने ठीक, जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है। आप मुझे रोक सकती हैं जहां आपको समझ ना आए, हम इसीलिए तो बैठे हुए ना साथ। और थोड़ा सा टाइम भी आपने देखा होगा हमने पीछे किया है, ताकि जो हमारी अगली क्लास शुरू होनी है उससे पहले पहले हम अपना अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकें। अच्छा जी, 4 हमने अब्वाब पढ़े थे QC1 में, कौन कौन से थे? फतहा, नफरा, दरबा, सामिया। अब हमने कहा है कि ये जो कमजोर अफाल हमने पढ़ने हैं ये भी इन्हीं स्टाइल पर आने हैं। तो अब जिस तरह से ये जो हमारी स्लाइड्स आती जाएंगी, हम सबसे पहले देखेंगे जो ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, 3 हरफी सही अफआल। अब ये जो सही अफआल है इसका मतलब है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई ऐसा फेल है कि जिसको हम कह सकें कि ये बिल्कुल फतह, नफर, दरबा, सामिया की तरह है, कि जिसमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं हो। तो ये कि अफआल तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कि वो थोड़े से चेंज होके आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कुरान पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। और एक चीज और आपने याद रखनी है, हम कहते हैं QC1, ठीक है, क्यू यानी कि कुरान। अब ये जो सी कहा इसे QC1 नहीं समझना, ठीक है, QC1 क्योंकि हम कहते हैं अपने QC1 जो लेवल 1 को। तो ये जो इशारों के नाम है, जब हम कहेंगे कि क्यू तो हम कहेंगे कुरान पार्ट, जब हम कहेंगे जी तो हम कहेंगे ग्रामर पार्ट। ठीक हो गया सिस्टर्स? अब किसी वो का थोड़ा कोई? सा स्टॉप हो गई थी, आप क्या कह रही थी? QC1? हाँ जी, QC1 का QC मतलब, हाँ जी QC1 जब हम आज का इशारा ये पढ़ रहे हैं ना, हमने कहा ये हम पढ़ रहे हैं, ये कुरान पार्ट का इशारा है, पहला पेज है, लेकिन हम सी पार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुरानी मजीद को जब हमने इस तरह से एक पेज को खोला तो हमने उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, अब ये जो आपको 3 आयात इसकी शामिल की, तो उसमें ये हुआ कि A, B, C और D, क्योंकि 1 2 3 4 में हमने सफात को कर लिया, तो हम इसको अलिफ बा जीम दाल इस तरह से कर सकते थे, या ABC में। तो ABC लोगों को जरा समझनी आसान होती है, तो इसीलिए फिर इसको ABCD में डिवाइड कर दिया गया। तो मैं ये कह रही थी कि जहां पर आपको QC1 आज के इशारे का नजर आए, तो अब हमने QC1 की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमने समझना है कि ये जो हमारा पहला पेज शुरू हुआ इसका हम तीसरा हिस्सा आज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वेंसडे को हमारा D इशारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। जी, एक्सक्यूज मी सिस्टर, मेरा आपसे क्वेश्चन है। जी जरूर। ये अभी जो आपने स्लाइड दिखाई थी और जी उसमें आपने कहा था ये 4 बाबों के बारे में, जो आपने कहा था कि इस आयत में, पहली आयत में अफाल तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आगे जाके इन बाबों से शायद चेंज हो जाएंगे। वो बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर आप ये स्लाइड थोड़ी सी पीछे करें, आपकी जो लास्ट स्लाइड थी, अच्छा फतहा, जी। नसरा, वहाबा। इसमें पता क्या हुक्म है आपको जी, आसान, इस पे इसको आपने कहा था इसको ना। मजीद, हाँ जी जी मजीद आसान करके बताती हूँ आपको कि इसमें हम इस तरह से करेंगे। जी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, लिखा हुआ है 3 हरफी सही अफाल। हम इसे जी। जरा ठीक कर लें। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपको ये नजर आ रहा है, ये जो सही जी अफाल लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है। सही अफाल का मतलब लिया जाएगा फतहा, नफरा, दौराबा, सामिया। हमने अपना पहला टेबल किया है वहाबा, जी वहाबा। अब वहाबा क्या हो गया, ये स्टाइल तो बना है फतहा का, ठीक है, ये हाँ स्टाइल ये बन गया, लेकिन वहाबा में क्या हुआ है, वहाबा में एक हमारा जो हर्फ था ये हो गया है कमजोर। अब कमजोर होने की वजह से इसके पूरे टेबल को हम कहेंगे कि ये कमजोर है, तो हम कहेंगे ये है 3 हरफी कमजोर अफआल। ठीक ठीक हो है। गया? देखो, अब जी इसमें से ये जो हुदन है, इसे अभी हमने ले लिया है इसम के तौर पर, लेकिन अगर यहाँ पर होता हदा, तो फिर हम कहते
کہ یہ جو ہے یہ 3 حرفی کمزور افعال میں سے ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اسے ہم اتنا زیادہ بار بار پریکٹس کریں گے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. ایکچولی یہ جو ہم جب ٹیبل بنا رہے ہیں, جیسے میں ابھی یہ غور کری تھی, تو اس میں بس یہ باب سے کس طرح سے ریلیٹ کرنا ہے کہ ہاں. فتح میں ہے یا نصر, اس کی ذرا کنفیوژن ہے. obviously ابھی تو سٹارٹ ہے, تو آئی تھنک آہستہ آہستہ پریکٹس سے اور یہ بہتر ہو جائے انشاءاللہ گا. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ اب ہم آج کا اپنا ٹیبل کرتے ہیں, ٹیبل کمپلیٹ ہونے کے جی بعد انشاءاللہ ہم اس چیز کو 15 منٹ ہم اور ایکسٹرا لے کے اس میں سمجھ لیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ جن سسٹر نے نماز وغیرہ کے لیے جانا ہے وہ جا سکتے ہیں, جنہوں نے رکنا ہے رک جائیں. ایک سسٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ ریکارڈنگ میں شامل رکھیے, تو انشاءاللہ ریکارڈنگ میں ہم آج شامل رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تھینک یو. چلیے جی, اب ہمارا شروع کرتے ہیں صفحہ 1 اشارہ سی. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اس کو بی پارٹ کہا کرتے تھے جب ہم QC1 میں تھے. اب بی پارٹ کہیں گے تو ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جائے گی, کنفیوژن کی اشارہ جو تھا وہ بی تھا, اب یہ بی پارٹ بھی ہو گیا, تو ہم اس کو کہیں گے اشارہ سی, یعنی کہ اسی کا ہی دوسرا حصہ گرامر پارٹ. ٹھیک ہو گیا. گرامر میں ہم نے کرنا ہے آج کا ٹیبل وعدہ. ٹھیک ہے کیا, وعدہ میں کون سی ایک خاص بات آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ کمزور افعال ہاں میں سے ایک ہے. کمزور افعال. ہاں, کیوں یہ کیوں کمزور لگ رہا ہے؟ اس میں واو آتا ہے. ہاں اس جی, کے شروع میں واو ہے. شروع میں واو ہے. ایک چیز ہم اس دن کرنا شاید بھول گئے تھے, یا یہ کہ میرے ذہن میں نہیں رہا کہ ہم اس بات کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے, کہ ہم نے کہا ہے وا, ہا اور با, یہ جو روٹ لیٹرز ہیں نا, مادہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کہیں گے کہ کمزور افعال کون سے ہوتے ہیں, جن کے مادہ میں 1 یا 2 کمزور آ جائے. ایک بھی آ جائے تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ یہ کمزور ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کمزور حرف چاہے شروع میں آئے, درمیان میں آئے, اینڈ پہ آئے, ہم نے اس پورے ٹیبل کو, جیسے ہم نے کہا وہبا, وہبو, وہبتا, وہبتو, وہبتم, وہبنا, اسی طرح سے یہبو, یہبونا, تہبو, اہبو, تہبونا, نہبو, اور اسی طرح سے ہب, ہبو, لا تہب, لا تہبو, واہب, موہوب اور وہاب یا وہب. اب یہ بھی ہم نے کرنا کہ ہم اس کے سیغوں کو دیکھ کے کہیں کہ جیسے اب آ گیا ہے تہبونا, تو ہم کہیں گے اس میں کہیں تا بھی شامل ہونا چاہیے. ایسے نہیں کرنا. ہم نے ایک پورے ٹیبل کو جب بھی ہم نے اس کا مادہ بتانا ہے تو ہم نے اس کا مادہ شروع میں ماضی کو دیکھ لینا ہے. اگر ماضی میں سے ہمیں نہیں ہنٹ مل رہا تو ہم اس کو کریں گے ایسے کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا یاد کرتے جائیں گے, کیونکہ پورا ٹیبل وہابا سے شروع ہو کے وہبن تک, یعنی کہ جو اس کا مصدر ہے, اس پورے ٹیبل کا ایک ہی مادہ ہے. وہ کیا ہے, واو, ہا اور با. اب جیسے ہمیں آج کا ٹیبل نظر آ رہا ہے وعدہ, تو اس کا مادہ کیا ہوگا, واو, واو عین دال. عین واو دال. عین دال. یہ ہاں واو جی, اب عین دال. ہاں, اب یہ جو وعدہ ہاں جی, یہ جو وعدہ شروع ہوگا یہ فعل ماضی سے ہم شروع کریں گے اور اسم مصدر پہ اس کو ختم کریں گے. اب اسم مصدر پر ختم کرتے اس کے اندر جتنے بھی سیغے آئیں گے, ہر سیغے کا مادہ یہی ہوگا, واو عین دال. ٹھیک ہو کیا, آپ نے سیغوں کو دیکھ کے اس کو گڑمڑ نہیں کرنا آپس میں. اور جب آپ کو ایسا کوئی کویسچن کوئز میں آ جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں ضرور پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اوپن بک بھی ہوتے ہیں. ایک تو اس میں یہ بات ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ پوچھیں گے تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا, پوچھنے سے یا سوال کرنے سے, سوال کریں گے تو پھر ہی ہم انشاءاللہ اس کا جواب حاصل کریں گے. تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی اس میں نہیں ہے یہ والی بات کہ شاید میں اگر پوچھوں گی تو میں دوسروں کے سامنے چھوٹی پڑوں گی. نہیں, ہم نے پوچھنا ہے, ہم ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں. میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھوں گی, آپ مجھ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارا سفر کیونکہ اللہ کے لیے ہے, تو اس میں ہم نے ان چیزوں سے تھوڑا سا ان کو پیچھے چھوڑ کے آگے آنا ہے. ٹھیک ہو کہ آپ ضرور پوچھا کریں جہاں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو. سم ٹائم یہ بھی ہو جاتا ہے, آپ گروپ میں سوال کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہی آنسر کر دیتے ہیں, تو یہ بھی بڑی ایک اچھی چیز ہوتی ہے. اچھا جی, ہم نے دیکھا کہ واو, یا اور الف. اب ہم یہاں پر ایک چیز یہ بھی کلیئر کرتے چلے جاتے ہیں ساتھ ساتھ, کہ جہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہوگا نا الف, تو یہ الف ہی ہے. اگر مادے میں ہمیں الف نظر آ رہا ہے تو وہ پھر الف نہیں ہوگا, وہ حمزہ ہوگا. وہ کیسے حمزہ ہوگا, انشاءاللہ ہم حمزہ والے افعال پڑھیں گے تو اس میں ہم
सीख लेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि मादा के हरूफ में अलिफ आ ही नहीं सकता। ठीक हो गया जी? जहां आपको मादा में अलिफ नजर आए तो वो असल में अलिफ नहीं होगा, वो हमजा होगा। अच्छा जी, अब हम करेंगे वादा। अच्छा जी, वादा के बारे में ये हम आज सीख लेते हैं कि ये कमजोर फेल है, जिस तरह से हमने अपनी पहली क्लास में भी सीखा था कि 3 में से अगर कोई एक हर्फ कमजोर है, ये मादा के हर्फ की बात हो रही है, ठीक है? कमजोर है तो पूरा फेल कमजोर है। जैसे किसी का एक हाथ कमजोर हो जाए तो उस इंसान को हम कमजोर समझ लेते हैं, क्योंकि वो एक सेहतमंद इंसान की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है? अब वाहबा और वादा, इनमें दोनों में शुरू में है कमजोर हर्फ, लेकिन जब हम इंशाल्लाह कौला का टेबल पढ़ेंगे तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि कमजोर हर्फ दरमियान में है। दो बातें हमने कमजोर अफाल के सिलसिले की याद रखनी है और इनको बार बार रिपीट भी करना ताकि ये याद रहें। वो पहली बात क्या है कि ये जो कमजोर अफाल है, इन 4 अबवाब में से इन्होंने गुजरना ही गुजरना है, ठीक है? हमने कहा था एक मस्जिद को जहन में लाएं, देखें कि 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा फतह, दूसरा नौतारा, फिर द्वाराबा और सामिया, ठीक है? अब जितने हमने कमजोर अफाल पढ़ने, वो स्टाइल यही होगा, फतह का स्टाइल, नौतारा का, द्वाराबा का, सामिया का। इसी तरह से यफ्ताहु, यंकुरु, यदरिबु, यस्माउ, यही स्टाइल बनेंगे, ठीक हो गया? लेकिन ये हो जाता है कि ये जो कमजोर हुरूफ होते हैं, ये कहीं पर हमें नजर आएगा ये गायब हो जाते हैं। ये वहाबा के टेबल में कहाँ गायब हुआ था वाव? कोई मुझे बताए जरा। यहाँ में भी वाव नहीं था और हब में भी वाव नहीं था। हब में भी नहीं फेल मुदारे में, फेल मुदारे में भी नहीं था, और इसी तरह से ये चला गया था अमर में भी, ठीक है? लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम देखते हैं मुदारे में तो ये गायब हो गया, लेकिन जब हम अमर पे आते हैं या अमर की जमा बनाते हैं तो ये वापस भी आ जाते हैं, ठीक है? ये टीम वर्क की तरह काम करते हैं, ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यानी कि जहां पर लफ्ज की बनावट मुकम्मल नहीं हो पा रही या सही तरह से नहीं बन पा रही, ये वापस भी आ जाते हैं। तो हमें भी इनसे सबक लेना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी है, चेन बनानी है इंशाअल्लाह। और ये सारी तब्दीलियां इसलिए हैं कि इन्हें बोलना आसान हो जाए, पढ़ना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए। अच्छा जी, हमने कहा अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा। इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा। इनको बार बार प्रैक्टिस किया करें। ये जो ऊपर वाली जो एक सेंटेंस है या एक फ्रेज, इसको आप कह लें, ये याद रखेंगे तो हमें ये टेबल साथ साथ याद होते हैं। जैसे हमने कहा था, कुरान खोलोगे तो मदद आएगी, फतहा नसरा, वरना मार पड़ेगी, सुन लो, द्वाराबा सामिया। इसी तरह से अब आप दोहराइएगा, चाहे सब अनम्यूट करें, खुद को दोहराइएगा, तरतीब से दोहराना है। अल्लाह ने देने का वादा अल्लाह किया, देने का वादा किया, अदा किया है, वहाबा वहाबा वादा, वादा, बल्कि कहा बल्कि ज्यादा कहा दूंगा, ज्यादा दूंगा, ज्यादा दूंगा, कौला कौला ज्यादा। दुआ करो हिदायत की, इसलिए दुआ करो अदा हिदायत की, दाआ हदा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप म्यूट कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वादा, उसने वादा किया, वादा उसने वादा किया। रेड कलर हमें बता रहा है कि इस फेल में हमारा पहला ही जो हर्फ है वो कमजोर है। वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नातिन, ठीक है? वअदल्लाहु, इतना तो हम तर्जुमा कर सकते हैं कि अल्लाह ने वादा किया मोमिनीन से और मोमिनात से, क्या वादा किया? जन्नत का वादा किया इंशाअल्लाह। अच्छा जी, एक सिस्टर ने सवाल किया था कि हम तो कहते हैं कि फेल की चाबियां तो हम अस्मा के आगे क्यों लगा देते हैं? तो जब हम अपने टेबल्स बनाएंगे तो हम इनको फेल की 6 चाबियां कहेंगे, सिर्फ अपना इसको समझते हैं कि अपनी आसानी के लिए, नहीं तो इसका जो मतलब एक नाम जो ग्रामेरियन लेते हैं या इसका जो नाम एक फिक्स किया गया है वो है सरफे सगीर। यानी कि ये सर्फ जो हम पढ़ रहे हैं, अभी सर्फ पढ़ रहे हैं, इनमें हरूफ को हेर फेर करके बदल के उनकी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसको जो हम 6 चाबियां कह देते हैं, ये हमारी समझने के लिए, समझ के लिए है। तो ये जो हम इसको कहेंगे कि ये सरफे सगीर है, यानी कि छोटी शक्ल है। कैसे हम कहेंगे? जैसे हमने कहा वहाबा याहाबू,
हब, इसके बाद वाहिब, महूब और वहाबुल। ठीक है, हम इसको कह देते हैं कि ये 6 चाबियां हैं, क्योंकि अभी हमारा ये स्टार्ट है, हमने लेवल 1 में इसको इसी तरह से सीखा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे कि ये सरफे सगीर है, और ये जब हमें सरफे सगीर आती होगी तो उसके बाद पूरे के पूरे से सीगे, पूरे टेबल, हम इसके मुज़क्कर मुअन्नस अस्मा में से वाहिद जमा बहुत कुछ इंशाल्लाह बनाना सीख लेंगे। अब हम अपने टेबल को पढ़ते हैं। वादा, उसने वादा किया, वादू, उन सब ने वादा किया, वाअत्ता, अच्छा जी, वाअत्ता, ये किसकी तरह का टेबल? हमने ऐसा एक टेबल QC 1 में भी किया जहां पर हमने आबादा। आबादा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते हैं कि हमने जो दाल के ऊपर जज़म है इसको हजम कर लिया। ठीक है, अब दाल और ता करीबुल मुखारिज है। ठीक है, एक ही जगह से इनका जो निकलना एग्जिट पॉइंट एक है, इस वजह से इसको हम ता के साथ मर्ज कर देते हैं। वाअत्ता, वाअत्तु, वाअदतुम, वाअदना। अब जब मैं कहती हूँ वाअदतुम तो ये पढ़ने में मुश्किल भी है और इसको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है, और ये कि 3 जो अल्फाज ये इस तरह से एक जैसे हमने पढ़ने, इनको हम पढ़ नहीं सकते। तो हम करेंगे वाअदतुम, वाअदना। और अगर मैं कहूँ कि इसकी मुअन्नस क्या बनाएंगे तो कौन बताएगा? वादत। वादत। हाँ, हाँ। अब आपने इसकी जो मुअन्नस बनानी ना, आज उसकी पक्की पक्की एक निशानी समझ लें कि जब हम पहला वाला सीगा उठाते हैं ना, हमने कहा फाआदा, फाआला, फताहा, इसी तरह से वाहाबा, जो भी हमारा टेबल होगा उसमें हमने सिर्फ वा, आइन, दाल, यानी कि जो पहला हमारा सीगा होगा माजी का, उसके आगे ता लगा के जज्म लगा देनी है। कोई उसमें तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, उस पे हम कोई शद नहीं लगाएंगे, कोई उस पे हम अपनी तरफ से अलिफ नहीं लगाएंगे, कोई या शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसके आगे एक ता लगाएंगे। ये सारे टेबल्स पर इसी तरह से ये रूल अप्लाई होगा। उसके आगे ते लगाएंगे और जो सॉरी ता लगाएंगे और उसके ऊपर जज्म लगा देंगे। तो क्या वादत पूरा भी हम देख लेंगे। आप ऐसा करते हैं कोई एक सिस्टर ये वाला टेबल दोहरा ले, माजी वाला मैं करा लूं सिस्टर? करवा लीजिए। वादा, उसने वादा किया, वादून, सबने वादा किया, वाअत्ता, आपने वादा किया, वाअत्तु, मैंने वादा किया, वाअत्तुम, आप सबने वादा किया, वाअदना, हम सबने वादा किया, वाअदत, हिया वाअदत, उस औरत ने वादा किया। उस औरत ने वादा किया। अच्छा जी, ये कौन सी सिस्टर ने करवाया? मुझे जरा अपना नाम बताइएगा। फाइजा। फाइजा। आप लोग अपना नाम बताया करें, क्योंकि मैं जब ये बार बार चैट ओपन करती हूँ तो। अच्छा जी, सिस्टर जवेरिया आप करेंगे मुदारे वाला और सिस्टर रेहाना आप फेल अमर वाला कीजिएगा। ठीक है क्या जी? ठीक है। याइदू, नहीं, अभी हम बनाते हैं। ठीक है, इम्तिहान नहीं है, आज हम सीखेंगे इसको। आज सीखते हैं, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। अब आप सब अनम्यूट करें और आप आंसर कीजिएगा। सामने लिखे भी हुए, लेकिन ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि माजी का जवाब हम उसी तरह से दे देते हैं जैसे हमने फाला का दिया था, फाला से। हल वादा, हल वादू, अल्हम्दुलिल्लाह। हल वादा, नाम वाअदतु, इसके बाद हल वाअदतुम, नाम वाअदना, वादना। ठीक हो गया जी। इसका माना क्या है? क्या उसने वादा किया? हाँ, उसने वादा किया। ठीक हो गया। और जब हम अपनी बात आपस अच्छा जी, म्यूट कर ले, वरना फिर हम भी जामे श्री दूध वाला पीने आ रहे हैं आपके पास। ठीक है क्या जी? यहाँ पर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा माजी वाला सीगा कंप्लीट हुआ। अब हमने देखना है, एक सिस्टर ने कहा था वादा याइदु। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप रिपीट कर रहे हैं या लिसनर हैं, तो थोड़ा सा वेट किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है, हमें पता है आपको आता है। तो जो नए लोग हैं उन्हें हम सिखाने के लिए बैठे हैं, तो थोड़ा सा वेट किया करें ताकि वो सीख जाएं। ठीक हो क्या जी? हम इसको अब देखेंगे, फतहा पर पहले लाकर देखेंगे कि फतहा से बनाते तो हम कैसे बनाते। हम बनाते, अब इसको हम या लगाते, वाव को शुरू में या लगा लेते और हम इसको आइन के ऊपर जबर देते जैसे हमने ता के ऊपर जबर दी थी। हम कहते वादा यौअदु। ठीक हो गया। और नासारा पर कैसे बनाते? वादा यौउदु। यौउदु तो ज्यादा मुश्किल है पढ़ना। ठीक है, फिर इसको हमने बनाकर देखा वादा यौइदु।
अब यौइदु जो बन गया तो ये अहले अरब ने कहा कि ये बेहतर है, इसको बोलना आसान है। और सामिया पर ये क्यों नहीं जाता? क्योंकि अगर हमें ये वाईदा नजर आता तो हम बाकी सारी चीजें पीछे कर देते और हम इसको सामिया पर बना लेते। अब करना क्या है, हमारे पास एक लफ्ज मिल गया हमें, यौइदु। ठीक है, अब यौइदु में हमने कहा था कि जो कमजोर हर्फ हैं वो चले भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि आइन के नीचे, हमने देखा कि आइन के नीचे जेर है और इसके बाद अगर हम अच्छा जी, मैंने कहा हम इसको म्यूट कर दें ताकि हम समझ लें। ये यहाँ से अगर समझ ना आए तो फिर ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि हमने कहा था कि जो कमजोर हर्फ हैं ये चले भी जाते हैं, और ये इसमें तो एक और भी वजह है कि इसके ऊपर है भी जज्म। ठीक है, अब जज्म जो आ गई, ये वाव कह रहा है कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये कमजोर है, तो अब हम इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद या ईदू हमारा पूरा एक लफ्ज समझ में भी आ रहा है और इसको बोलना भी आसान है। और जब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने बाकी यौ अदू या यौ अदू क्यों नहीं किया, तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा जवाब ये है कि ये अरबों की मर्जी है, उन्होंने इस तरह से पढ़ा है, हमने इसको इसी तरह आगे लेके जाना, खुद अपनी मर्जियां नहीं करनी। और उससे भी जो बड़ी जो बात है ऑथेंटिक है वो ये है कि कुरान मजीद में ये अल्फाज इसी तरह से इस्तेमाल हुए हैं। हमने क्या किया है, या ग्रामेरियन ने क्या किया, उसको खोला है ताकि हम इसको समझ सके कि ये कैसे बनाया गया। कि हमने इसको कहा कि फतह नफर सामिया पर नहीं बनाना, बल्कि दौराबा पे ही बनाना है। दौराबा पे बनाने पे ये आसान भी हो गया और ये कि समझ में भी आएगा जब हम इसका मुदारे वाला टेबल करेंगे। और ये जहां पर आपको जो समझ वगैरह ना आए, समझने में मुश्किल हो, तो इंशाल्लाह एंड पे हम इसको फिर दोबारा से एलिब्रेट कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसका पूरा टेबल बन जाएगा। मुदारे वाला, मुदारे में हमने दोनों तरह के तर्जमे लिए थे। हमने कहा था कि ये जो मुदारे वाले टेबल हैं इनमें हाल वाला माना भी आता है और मुस्तकबिल वाला भी। हम कहेंगे याइदू, इशारा हमारा ऊपर चला जाएगा, याइदू वो वादा करता है, याइदू ना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदू ना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, या ताइदू यानी कि अंता ताइदू हिया ताइदू वो औरत वादा करती है। अब इसको थोड़ा रवानी से पढ़ लेते हैं। वादा वादु वादता वादतु वादतुम वादना वादत, याइदू याइदूना ताइदू आइदू ताइदूना नाइदू और या ताइदू। ये सिस्टर जवेरिया, अब आपने पढ़ना है, मुदारे वाला पढ़ लीजिए। ठीक है, जाहिदू वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, हिया ताइदू वो औरत वादा करती है। वो औरत वादा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम जो फेल अमर बनाना है उसको कैसे बनाएंगे। उससे पहले हम एक बोलचाल वाला सेशन कर लेते हैं। अब आप अनम्यूट कीजिए सब लोग। हल याइदू, नाम याइदू हल याइदूना, नाम याइदून नाम याइदूना हल ताइदू, नाम आइदू नाम आइदू हल ताइदूना, नाम आइदू नाम नाइदू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसी तरह से हमने सीखा था कि जब हम ज़ैदुन की असली हालत को, यानी कि दो पेश वाली रफा वाली हालत को हम लेकर आएंगे दो जबर वाली तनवीन पर, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। यानी कि जब ये ज़ैदुन था तो ये काम कर रहा था, लेकिन जब ये ज़ैदन हो गया तो अब क्या हुआ, अब इस पर काम हो रहा है। ठीक है, हल याइदू ज़ैदन, क्या वो वादा करता है जैद से? क्या जवाब देंगे? नाम ज़ैदन। अच्छा जी, अगर मैं कहूं कि ये लिखा हुआ है हल याइदू ज़ैदुन, फिर क्या तर्जुमा करेंगे हम?
क्या वो सब नाम वो याइदू की मदद ज़ैदुन। करेंगे। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो आप समझें कि जैद के ऊपर दो पेश है, ठीक है। हमने कहा था कि जो दो पेश ये फिर फाइल बन जाता है। अब जब ये फाइल बना तो हम कहेंगे हल याइदु जैदुन, क्या जैद मदद करता है। तो अब ये चूंकि दो जबर है तो हमने इसका ये फर्क समझना है कि अब ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया। अब है हल याइदु, क्या वो मदद करता है जैद की, हम कहते हैं नाम याइदु जैदन, वो मदद करता है जैद की। हल याइदूना तो जैदन, वादा है ना, वादा करता है ना, मैंने क्या ये कहा, हल मदद। याइदू ज़ैदन, सॉरी, मैंने मदद बोलना मदद। सारा वाला। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हल याइदूना जैदन, नाम याइदूना नाम ज़ैदन। याइदूना अच्छा जी। हल ज़ैदन। ताइदू जैदन, नाम 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 आइदू नाम ज़ैदन। आइदू ज़ैदन। हल ताइदूना जैदन, नाम नाइदू ज़ैदन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, अब ताइदूना को देख के हमने इसका आंसर निकाल लेना, हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हल का हमें पता है कि हमने या तो ला में जवाब देना है या हमने इसका जवाब नाम में देना है। तो ताइदूना को देखते हुए आप मुझे सही वाला आंसर बताएं, कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए। नाम नाइदू ज़ैदन। सी वाला, नाम अल्हम्दुलिल्लाह, ताइदूना ज़ैदन। अल्हम्दुलिल्लाह, नाइदू यानी कि आप सबकी बात हुई तो फिर हमारी बात होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हमने बनाना है इसका फेले अमर। फेले अमर ये जो कमजोर वाले होते हैं इनका बनाना मजीद आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीजें और नहीं डालनी पड़ती, जैसे आरती जेर वगैरह नहीं लगानी पड़ती। अब इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह ये है कि अब आप देखेंगे कि ये याइदु जो लिखा हुआ है, वैसे बनाया भी है इन्होंने, लेकिन मैं आपको और मजीद इसको बता देती हूँ। अब हमारे पास जब था फ़आला, ठीक है, इसका हमने बनाया था यफ़अलु, ठीक है, यफ़अलु। लेकिन जब हमने इसका बनाया फेले अमर तो बन गया ये या को काटने के बाद हमारे पास फा के ऊपर जज़म आ गई, ठीक है, यहाँ भी जज़म आ गई, ठीक है क्या। अब इसको पढ़ना मुश्किल था, अब देखिए इसको पढ़ना मुश्किल है। ये जो पेश होती है ना, जैसे ये, इस पेश को भी हम गिरा देते हैं। इस पेश को जब हम गिराते हैं तो इसकी जज़म बन जाती है, ठीक है क्या, इसकी जज़म बन जाती है। अब हमने जब इसको पढ़ा कि ये जो शुरू में साकिन हो गया है, अब साकिन होने की वजह से हम इसको पढ़ नहीं सकते, तो हमने एक अलिफ लगाई थी, उसके नीचे लगा दी थी जेर। अब ये बन गया था इफ अल, ठीक हो गया, याद है ना आप सबको, इफ अल। अब लेकिन जब हम याइदू का बनाते हैं तो याइदू में से या काटती, अब हमारे पास जो आइन बच गया इसके नीचे जेर है, ठीक है। अब हमने जो इसकी पेश काटी तो हमारे पास ये जज़म आ गई। अब ये हुआ है कि इसको पढ़ना आसान हो गया। हमारी स्लाइड भी हिल गई है। चलिए हम इसको क्लियर करके दोबारा देख लें। अच्छा, स्टक हो गया है मेरा मोबाइल। अच्छा जी, अब हमने देखा कि ये जो हमारा याइदू से हमने बनाया था इद जी। अब जिसका हैंड रेज है आप सवाल कर लें। नहीं सिस्टर, मैंने पढ़ने के लिए हैंड रेज की है। ठीक है, चलिए फिर हम इसको पढ़ते हैं। जहां तक समझ आई आपको कि इसका फेले अमर कैसे बना? जी जी समझ आ गई। समझ ठीक है, आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका हम पूरा टेबल बना लेते हैं। वो कैसे? ईद वादा कर, ईदू वादा करो। अब देखिएगा कि ये जो वाव था ये वापिस आ गया है, ठीक है। अब ईद था तो ये जरूरत नहीं थी, लेकिन ईदू में क्या हुआ है
کہ ये जो ईदू हमने इसको एक इस तरह से भी याद रखना है, जैसे हमने कहा था वादा, इसके बाद वादू, ये वाव और अलिफ ये है जमा की निशानी, ठीक है। अब ये जो ईदू बना है, अगर इसके हम आगे वाव और अलिफ नहीं लगाएंगे, अलिफ बहुत जरूरी है, वाव अलिफ जो होती है ये जमा की निशानी होती है। ईद ईदू, वादा कर और वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, फेले नहीं, और अपनी 4 फिंगर्स खोल के कहिएगा ला ताइदू मत वादा करो, इसमें तुम सब और तुम छुपा हुआ है, ठीक हो गया। ये सिस्टर अब पढ़ ले जिन्होंने हैंड रेस किया था। ईद वादा कर, ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो। मत वादा करो, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने सीखा था कि जब हम फेले अमर वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब हम मुदारे से देंगे। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो हुक्म होता है ना, ये सामने वाले को दिया जाता है, ये मुदारे यानी कि जो हमारे सामने हो, उसमें हम कहते हैं कि ईद तू वादा कर, ठीक है। तो हम क्या किसका जवाब क्या देते हैं? मैं वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ, ठीक है। जब हम कहेंगे ईदू तुम सब वादा करो, तो जवाब पे हम क्या कहेंगे? नाइदू। हाँ, अब ये जो हमें ईदू और ना ईदू का तर्जुमा बता रहा है कि ये हमने फेल मुदारे से उठाना है। कैसे? हमने कहा मैं वादा करता हूँ या मैं वादा करूंगा, ठीक है। मैं वादा करता हूँ, ये नहीं हम कहते मैंने वादा किया, पुरानी बात नहीं है। हुक्म है सामने अभी मिला है और हम इसको अभी करेंगे या मुस्तकबिल में करेंगे। माजी जो है वो खत्म हो गया, मबनी हो गया, खत्म, माजी की बात यकीनी हो गई, माजी में तब्दीली मुमकिन नहीं, तो हम इसलिए फेले अमर का जवाब मुदारे से देते हैं। इसी तरह से फेले नहीं में भी, जैसे ला ताइद मत वादा कर, तो उसका जवाब फिर इसी तरह से देते हैं। कैसे कहेंगे? ला ताइदू, ठीक है। इसके बाद ला ताइदू, ला नाइदू। ला नाइदू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जिस तरह से हमने सीखा नासिरुन, फातिहुन, जैसे हमने सीखा था वाहिबुन, उसी वजन पर हम इसके जो आखिरी के 3 खाने हैं उसमें हम इसम फाइल, इसम मफऊल और इसी तरह से इसम मस्तर बनाते हैं। वाइदुन, मऊदुन और वअदुन। ठीक है, आप इनके ऊपर तनवीन लगा के पढ़ा करें, उससे फायदा ये होगा कि जब हम वादा और वाद इसमें फर्क भी महसूस करेंगे, बोलने में भी और इसको समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने जैसे शुरू में अपने टेबल पढ़े थे जब हम QC1 में थे, अंता का जवाब अना से, अंतुम का जवाब नहनु से। अब वाइद, वाइदुन, ये जो फाइल है ये तो वही अपनी जगह पर रहेगा। कैसे? सवाल को हम तर्जुमे से समझ लेते हैं। हल अंता वाइदुन, क्या आप वादा करने वाले हैं? तो हम जवाब में क्या कहेंगे जवाब में? अंता का जवाब हम क्या देते हैं? अना वाइदुन, वाइदुन। ठीक हो गया। हल अंतुम वाइदूना, नअम नहनु वाइदूना। और ये इशारे भी आप जरूर किया करें। ये जो हमारा TPI वाला सिस्टम है ये बहुत बेहतरीन है। इसमें ये हो जाता है कि बाज दफा अगर आपको लफ्ज को देखने में समझ नहीं आ रही, जब आप इशारा करेंगे इशारे से भी समझ आ जाएगी। जैसे हम कहेंगे हल हुम का इशारा हो गया, इसके बाद हम देने वाले को जिस पे असर पड़ रहा है, ठीक है, ये वादा करने वाला और जिस पे वादे का असर पड़ा, हल हुम मौदूना, तो इसका जवाब हम क्या देंगे? नअम हुम मौदूना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन है आपकी ये जो प्रैक्टिस, ये इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा, इसे छोड़िएगा नहीं। अच्छा जी, अब हैंड रेज करें, फिर मैं जिसे कहूंगी वो पूरा टेबल बनाएंगे। सबसे पहले जो हैंड रेज करेगा अम्बरीन अब्दुल रज़ाक।
पूरा पहले टेबल पढ़ना है? हाँ जी, अमरीन पूरा टेबल पढ़ेंगे, इसके बाद सिस्टर निगहत पढ़ेगी पूरा टेबल। और ऐसा करना है कि आपने तर्जुमा नहीं पढ़ना, ताकि हम इसको क्लास को कवर भी कर लें। हम थोड़ा सा इसको सीखना चाहते हैं, थोड़ा सीखों पर बात करना चाहते हैं, ठीक है। वादा, 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 वादतु, वादतुम, वादना, वादत। आपके पास अगर याइद। 2 डिवाइसेस ओपन है तो एक में आवाज बंद कर दीजिए, डबल आवाज आ रही है। नहीं, मेरे पास तो सिंगल ही है। अच्छा, और किसी का माइक खुला हुआ तो बंद कीजिएगा, हम सिस्टर का टेबल सुन रहे हैं। याइदु, याइदुना, ताइदु, आइदु, ताइदुना, नाइदु, ताइद, हिया ताइदु, या ताइदु, इद, इद, इदु, ला ताइद, ला ताइदु, वाइदुन, मऊदुन, वादुन। वादुन, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब सिस्टर निगहत आप भी कर लीजिए इस टेबल को। वादा, वादु, वाअत्ता, वाअत्तु, वाअत्तुम, वाअदना, वाअदत। मुजारे, याइदु, याइदूना, ताइदु, आइदु, ताइदूना, नाइदु, नाइद, हिया नाइद, ताइदु, ठीक इद, है। अंता ताइदु, हिया ताइदु, ठीक है, नाइद नहीं कहेंगे। अंता ताइदु, हिया ताइदु, इद, इदु, ला ताइद, ला ताइदु, वाइदुन, मऊदुन, वादुन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 4 हैंड रेस हुए थे, और जिस सिस्टर का हैंड रेस है सिस्टर नौरीन रमजान और सिस्टर वजीहा, आप दोनों बारी बारी करें। पहले सिस्टर नौरीन करेंगे, फिर सिस्टर वजीहा करेंगे। सिस्टर नौरीन रमजान। वादा, वादु, वाअत्ता, वाअत्तु, वाअत्तुम, वाअतना, वाअतना। वादना के बाद वादत। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। याइदु, याइदूना, ताइदु, आइदु, ताइदूना, नाइदु, ताइदु, हिया ताइदु। अल्हम्दुलिल्लाह। इद, इदु, ला ताइद, ला ताइदु, वाइदुन, मऊदुन, वादुन। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर। आप सिस्टर वजीहा करेंगी। वादा, वादु, वाअत्ता, वाअत्तु, वाअत्तुम, वाअदना, वाअदत। याइदु, याइदूना, ताइदु, आइदु, ताइदूना, नाइदु, हिया ताइदु, इद, इदु, ला ताइद, ला ताइदु, वाइद, मऊद, मऊदुन, वादुन। वादुन, अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन, आप सबने बेहतरीन कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन टेबल बनाया। अल्लाह ताला आप लोगों की इस मेहनत को, इस जो जितनी भी आप कोशिश काविश करते हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और बेइंतहा बेशुमार अजर नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पूरा टेबल हम दोहरा चुके हैं। ये हमारी आ गई 6 चाबियां। चाबियां कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास एक ऐसी चीज आ गई हमारे हाथ में, की को जरा आसान होता समझना कि हमने ये खजाना खोल लिया, ये हमने कोई तिजोरी का मुंह खोल दिया। अब क्या है, अब हमारे पास है वादा, ठीक हो गया, पहला जो हमारा सीखा है। अब हम इस पर तमाम के तमाम सीगे बना सकते हैं। अभी इंशाल्लाह जैसे हम QC 4 में पहुंचेंगे, हम इसमें फिर तस्निया वाले भी करेंगे, हम इसके मुअन्नस के जो जमा वाले वो भी करेंगे। कुछ अभी मिसिंग है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे ये जो 6 हम प्रैक्टिस करते हैं, 7 प्रैक्टिस करते हैं, ये पूरे 14 पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह।
تو ہم اس کی 6 چابیاں کیسے کہیں گے؟ وعدہ یعدو عد وعید موعود وعد. اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے وعدہ کیا. اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ وعدہ کے روٹ لیٹر واو کیا؟ عین دال. واو عین دال. اچھا جی. اب آپ ایسا کریں کہ جو اس میں سے اسما ہے، اس میں سے آپ کو کون سے اسما لگ رہے ہیں وعدہ کے؟ اسما یہ والے کون سے ہیں؟ وعدن موعودن موعودن وعدن. ایک. الحمدللہ الحمدللہ. میری بہترین کلاس. اب جیسے بالکل وعدہ کا ٹیبل ہے، سیم اسی طرح وجدہ کا ٹیبل ہے. تو ابھی یہ تو آپ کا ہے ہوم ورک میں ہے، لیکن تھوڑی سی اگر میں کہوں کہ کوشش کر کے آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس کا بالکل وعدہ کے وزن پر کیسے بنا لیں گے ٹیبل؟ وجدہ یجدو جد. الحمدللہ الحمدللہ. اس پہ تو آپ کو ڈبل تھمز اپ ملنا چاہیے. الحمدللہ. اچھا جی، اب یہ کون کوشش کرے گا؟ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عربی بنائیں. تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے. کوشش کریں، پہلے اپنے ذہن میں لائیں. تم سب وعدہ کرتے ہو. جب میں تعیدون تعیدون خالدن. ہاں جی، اس کو آپ پتا اب آپ کیا کیا کریں. آپ نے بالکل صحیح بنایا ہے. آپ کیا کریں کہ یہ جو آپ کرتے ہو، اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو خالد کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم صرف یہ دیکھتے ہیں تم سب وعدہ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو ہمارا وہ سامنے والا وہ پورا آ جاتا ہے تعیدون. پھر یہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے. اب ہے ہمارے پاس اردو میں ترجمہ کرنا ہے. اچھا، تعیدون خالدن. ٹھیک ہے، خالد سے وعدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اچھا جی، اس کی ایک ایک لفظ کی کوشش کیجیے. یہ سسٹر نکت نے ہینڈ ریز کیا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ہم دیکھیں گے واللہ اور اللہ. ٹھیک ہے، یعیدو. ٹھیک ہے، یعیدو کم اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سب سے. کس چیز کا؟ مغفرت کا. منہ بھی ہم پورا کر چکے ہیں نا، اس کے مغفرت اور فضل کا. ٹھیک ہو کیا؟ آگے جواب دینا ہے آپ نے عربی میں، اس کا ترجمہ نہیں کرنا. حل وعدتا تم سے جی من کیا ترجمہ کریں گے؟ حل وعدتو خالدن. نام وعدتو خالدن. حل وعدتو خالدن. ہاں جی، منہ کا اس سے. ٹھیک ہے، اس سے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. منہ ہم نے پورا ٹیبل بھی تو کیا ہوا ہے نا، من والا ٹیبل. منہ اس سے. ٹھیک ہے، منہ من سب سے. یہ ہم نے ٹیبل بھی تو کیا ہوا ہے نا پورا کا پورا. ذرا سا ایک کام کرنے ادھر بیٹھ جاؤ، بس ادھر کام ہو جاتا. اچھا جی چلے. اچھا ایک منٹ ذرا اپنی مائک اردو میں میوٹ کر کے. ترجمہ ہے، یہ ایک دفعہ پھر بتا دیں گے. ہاں واللہ جی. یعدکم. اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سب سے مغفرت کا اور اس کے فضل کا. اب آپ اپنی ذرا بک کھول کے دیکھیے گا 1C پر. بکس آپ کے پاس آ گئی ہیں؟ جی اچھا، بک کھول کے دیکھیے. اس میں اردو ترجمہ اسی والی آیت مبارکہ کا مانگا ہوا یا کسی اور کا؟ الوعدہ یہ مجھے بتائیے گا، کیونکہ اگر چینج ہے تو اس کو بھی ہم یہیں پہ کر لیتے ہیں. جو اردو میں ترجمہ کرنا آپ کے پاس یہی آیت مبارکہ یا چینج ہے؟ بک میں تو یہ اس طرح کی نہیں لکھی ہوئی. ہاں، بک میں کیا یہ لکھا والی ہوا؟ آئی. ہاں، بک والا بتائیے گا. جیسے بک میں صرف وہ ہے، اردو میں ہے. الا ان وعد اچھا جی، ہاں، اب ہمارے اللہ پاس انا وعد اللہ حق. آلہ. اس کو اللہ نہیں کہیں گے، آلہ، کیونکہ تھوڑا سا آلہ انا. انا ٹھیک ہے، وعد اللہ وعد اللہ حق. وعد اللہ حق. اچھا جی، یہ ہمارے لیے یہ والا لفظ ایک نیا ہے. ٹھیک ہے، آلہ اس کا مطلب ہوتا ہے جان لو یقیناً یا خبردار جان لو، ہو جاؤ. خبردار. ٹھیک ہے، آگاہ رہو، جان لو، خبردار رہو.
ये सब ये जो जितने भी अल्फाज है उससे कोई एक आप चुन सकते हैं। इन्ना, इन्ना को हम कर चुके हैं QC1 में। इन्ना का मतलब होता है बेशक, वअदल्लाहु, अल्लाह का वादा, ठीक है, वअदल्लाही, सॉरी, वअदल्लाही, हा होगी, हा के नीचे जेर होगी, अल्लाह का वादा, ठीक है। इन्ना, बेशक, वअदल्लाही, अल्लाह का वादा, हक्कुन, हक है क्या, सच है, ठीक है, आगाह रखो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, ठीक हो क्या। अब हमारा है हाँ में जवाब देना है। हल वअदता, वअदता, वअदता खालिदन, सिर्फ हमने वादता को चेंज किया। नाम नाम खालिदन। खालिदन। खालिदन, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर अगर किसी का ये हाँ मिस हो भी जाए ना, तो आप ये ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। मैं होती हूँ, अफसा है, सिस्टर अजरा होंगी, सिस्टर विशाल, इनके नाम हम आपको दे भी देंगे लिख के नंबर के साथ, ताकि आपको मुश्किल ना हो। चलिए ठीक है। आवाज नहीं आ रही। किसी को भी आवाज नहीं आ रही? मैम आ की रही है, आवाज पर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा आ रही है जी, हाँ जी, वादा की तरह, बिल्कुल वादा का हमने करना है टेबल। वाजादा, उसने पाया। टेबल करते वक्त आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक सामने रखनी है। अगर आपके पास अभी फिलहाल बुक नहीं है तो आप PDF को सामने रखें। PDF पे आपका वादा का टेबल लिखा होगा, आपने बिल्कुल उसी के जैसा टेबल बनाना है। जैसे हम कहेंगे वजदा, वजदू, वजदता, वजदतु, वजदतु, वजदना, और हिया वजदत। इसी तरह से याजिदू, याजिदूना, तजिदू, अजिदू, तजिदूना, नजिदू, हिया ताजिदू। इसके बाद जिद, जिदू, लाता जिद, लाता जिदू, वाजिदुन, मौजूदुन, और इसका जो होगा मस्तर थोड़ा चेंज है, यहाँ लिखा भी क्या वो होगा, वजूदुन, ठीक हो क्या जी। ये प्रैक्टिस आपने करनी है। और जिस तरह से लिखा हुआ है कि इसकी चाबियों पर दायरा लगाएं। अब आपने दायरा लगाने वाला काम कैसे करना है ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप लिखेंगे मैम मैंने आगे दायरा लगा दिया उनके। ठीक है। मुझे भी ये होता था कि मेरी बुक ना कहीं गंदी हो जाए, ये इश्यूज होते हैं, ये लड़कियों को ही होते हैं, वैसे मैंने और किया है। आप इन पे अगर तो दायरा इसके ऐसा आगे हाँ हाँ, आपने लगाया, ऐसे दायरा लगा दिया, आप ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा भी लगा ऐसे सकते लगाया। हैं। हाँ, अब बात तो ये इससे जरा मुझे होता था कि इससे ऐसे भद्दा हो रहा था। हाँ मैसी सा लगता। अब मैं क्या करती थी, मैंने ये जो इसी तरह से लिख लेना नीचे, ठीक है, हमने सारी ये चीजें तीनों नीचे लिख के, फिर वो थोड़ा सा छोटा छोटा सा लिख के, जैसे मैंने लिखा बाजादा, तो फिर उसके ऊपर ऐसे छोटा सा सर्कल बना देना, ताकि वो ऊपर वाला मेरा टेबल साफ सुथरा रहे। तो जैसे आपको आसानी हो, मकसद हमारा सीखना है, ठीक है। ये बेल बूटे, ये लड़कियों को वैसे भी जरा शौक होता है कि थोड़ा सा मेरा काम दूसरों से ज्यादा अच्छा लगे, तो ये मुसाबकत का जज्बा ये बेहतरीन है, इसमें कोई मुजायका मैम नहीं है। हाईलाइटर से हाईलाइट भी किया जा सकता है। हाईलाइट भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा जी, ये हमने सीख लिया, ठीक है, हम इस पे दोबारा से टाइम नहीं लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह से जैसे हमने अपने साथ होमवर्क किए थे, इसमें भी करने हैं। टीचर बनने के लिए सबने तैयार हो जाना है कि टीचर बनना है इंशाअल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर के लिए हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, ठीक है, 10 मिनट रुकेंगे हम। अच्छा जी, दुआ कर लेते हैं। ए अल्लाह, अब ये कुरान के हुकूक है, इस तरह से इनको पढ़ा करें। ए अल्लाह, कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी क्लास तो चूंकि हो गई है कंप्लीट, तो अब किसी के क्वेश्चन है, कुछ समझना है, तो इंशाअल्लाह हम इसको 7 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं असर की नमाज भी पढ़ूंगी। तो अब अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जी सिस्टर्स। सिस्टर मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये कोड और ये बाब जो है ना, इनकी नहीं समझ आ रही। हमें कैसे कुरान पाक पढ़ते हुए पता चलेगा कि ये फातिहा कहीं टेबल पे जा रहा है या नासारा, मतलब पूरा अच्छा, इसको कैसे किसी हाँ, देख के करेंगे। अच्छा जी, अब आप मुझे कोई एक लफ्ज दें, तो मैं उसको कैसे पहचानूंगी कि ये कौन सा टेबल है। तो इसका बेहतरीन आंसर जो हमें हमारे असातिज़ा ने दिया,
उन्होंने कहा या तो आपको पहले आपका टीचर बताएगा या ग्रामेरियन बताएंगे, और वो क्या बताएंगे, वो आपको माजी भी बताएंगे, मुदारे भी बताएंगे। इसमें चूंकि हमारी अपनी मर्जियां शामिल नहीं है, तो हमने इसको कोई भी हम लफ्ज देखेंगे तो या तो पहले आपको मैं बताऊंगी, या आप किसी, जैसे मैंने एक ऐप आपके साथ शेयर किया है, आप उस पर टैप करें, आपको पूरा का पूरा टेबल नजर आ जाएगा, उसका टेबल नजर आएगा। फिर आप मजीद समझें कि जैसे अब आपने एक टेबल इसमें से निकाल लिया है, जैसे अब निकाल लिया आपने कफरा, कफरा का टेबल, आपने कहीं पे कफरा का जिक्र हुआ, आपने टैप किया, कफरा नजर आ गया। अब आप कफरा के टेबल पे जहां भी कहीं टैप करें, आपको पीछे पूरा नौसरा का टेबल नजर आ जाएगा। तो कुरान पाक को हम डायरेक्ट देख के नहीं समझेंगे, हमें पहले सीखना पड़ेगा। और जो इसके कोड वर्ड है वो हम जैसे जैसे हम टेबल करते जाएंगे, उनके कोड वर्ड्स हम इंशाल्लाह साथ साथ ही सीखते जाएंगे। ठीक हो क्या सिस्टर? जो थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां आगे आनी है कोड वर्ड में, उसको हम इतना इंशाल्लाह अच्छी तरह से सीख लेंगे। जहां आपको समझ ना आए आप मुझे रोक के, इंशाल्लाह हम उस पर दोबारा मजीद रोशनी डालेंगे कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है। अभी के लिए आपने जो एक अहम बात याद रखनी है, ये सिस्टर जवेरिया मैं आपका सवाल लेती हूँ, जो अहम बात हमने याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? हमने 2 टेबल कर लिए, ठीक है, आज हमारा दूसरा टेबल था। तो जो हमारा पहला टेबल था वो था वहाबा, वहाबा, और हमने ये इसका कहा था कि मेन बाब, ठीक है, मेन बाब, मेन बाब इसका क्या था? फातहा, फातहा, और इसको हम छोटा लफ्ज इसका क्या कहते हैं? ठीक है। अब ये जो हमारे पास वाव और हा है ना, ये वाव और हा, ये हमारा होगा सब बाब। ठीक हो क्या? इसको हम सब बाब भी कहेंगे, इसको हम कोड भी कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक और चीज हमने जो याद रखनी वो है इसका मादा, ठीक है। ये हमने 3 चीजें याद रखनी है। जब आपसे पूछा जाए, अब आपको पूछा जाता है वादा, तो वादा के बारे में आपने जो 3 बातें बतानी वो क्या है? इसका मेन बाब वा है, इसका कोड वह है, ठीक है, और इसका जो मादा है हाँ वाओ, दौद और आइन। अब ये जो कोड है, कोड, अब ये जो वाओ हा, इस पैटर्न पर आने वाले 100 हूँ, 1000 टेबल हूँ, हम इसको, क्योंकि हमने पहला टेबल वहाबा का सीखा है, तो हम कहेंगे जो वहाबा है यही हमारा कोड है, ठीक है, रेफरेंस टेबल है हमारा, इसको रेफरेंस टेबल भी कहेंगे, ठीक है। मेन बाब हमारा फतहा रहेगा, इसके बाद ये आगे इसके, अब जैसे आज हमने कौन सा टेबल किया? आज हमने किया है वादा। अब आप मुझे इसके बारे में 3 बातें बता दें। इसका मैं पूछती हूँ आपसे मेन बाब, और मैं आपसे इसका पूछ रही कोड क्या है, इसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ इसका मादा क्या है। चलिए, मेन बाब क्या होगा? जिसको भी आता है दौराबा, यानी कि बाब दौद इसका मेन बाब होगा, और इसका कोड क्या होगा? अभी हमने आज पहला टेबल किया है, ठीक है, ये हम इसका कोड बना लेंगे। अब इस कोड का मतलब ये है कि वजदा का कोड भी यही है। इसी तरह से हम अगर वाक़ा करते हैं तो उसका भी कोड वाउ एन है, यानी कि इस तरह इस तो पैटर्न पर आने वाले जितने भी टेबल होंगे, हम कहेंगे कि उनका जो कोड है वो वाउ एन, यानी कि वादा, पूरा भी कह सकते हैं। अगर आपको पूरा कह के याद होता है तो पूरा कह लें, पूरा कहा करें कि ये जो वादा का टेबल है ये वहाबा पे है, वजदा का टेबल वादा पे है, और इसका रूट लेटर क्या बनेगा? तीसरी बात भी हम सीख लेते हैं, वाओ आइन दाल, आइन दाल। ठीक हो क्या सिस्टर? जिस सिस्टर ने, सिस्टर नौरीन ने शायद सवाल किया था, जी सिस्टर आप ये क्लियर हुआ? जी सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिस से मुझे समझ आएगी ज्यादा। हाँ, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपको समझ आती जाएगी। ठीक हो क्या जी? बहुत शुक्रिया जी। अब सिस्टर जुवेरिया ने हैंड रेज किया था। मैम मैंने ये पूछना था कि अल्लाह ने अता किया हम सबको, ठीक है, तो ये इसका मतलब है अरबी क्या बनेगी? अच्छा, अल्लाह ने अता किया। अब ये जो अल्लाह है हमारे पास एक फाइल, यानी कि अल्लाह ताला का नाम हमारे पास पेश के साथ जाहिर हो गया। अब हमने कैसे किया था? हाँ जी, उसने अता किया,
इसको हमने कैसे किया था? सॉरी वहाबा, तो मैं ओपन कर उसने अता लेती किया वहाबा। हूँ। हाँ वहाबा, ठीक हो गया। ये हो गया है वहाबा। अच्छा, इसको अब वहाबा अल्लाह ने अता किया हमें, तो हम ना को पहले भी ला सकते हैं, ठीक है। वहाबना अल्लाहु, अब इसका माना बन जाएगा अल्लाह ने हमें अता किया। एक और तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाबल्लाहु लना, हाँ ठीक हो गया। वहाबा, ये कर सकते हैं। इसको वहाब नहीं कहना, ठीक है, इसको वहाबा ही कहना, ठीक है। वहाबल्लाहु, वहाबा, हाँ वहाबल्लाहु वहाबल्लाहु लना। लना। अगर हम इसको अच्छा नाउजुबिल्लाह हम करते हैं ना, वहब वहब, जी, अब ये इसका माना हो जाएगा और अता कर, ठीक है। ये बन जाता है अमर, ठीक है। जी जी, इसका मतलब हो जाएगा और हाँ हम जी, अता कर रहे हैं अल्लाह को, ठीक है। इस बात का खास ख्याल जी रखना है कि ये जो इसका माजी और अमर, इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये अल्फाज तो सारे बन जाने हैं। जब हम वहब कहेंगे तो ये दो बन जाएंगे, एक हमारे पास हर्फ हो जाएगा और एक हमारे पास फेल हो जाएगा। जी सिस्टर समिया जी। सिस्टर ये ऐसे हो सकता है अल्लाहु वहबना? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन बेहतर है कि ये जो अल्लाह का जो मतलब जिसने अता की हो, जिसने काम किया हो, उसको हम बाद में लाएं, ठीक है। वहाब अल्लाह भी सही है, ठीक है, शुरू में करना ज्यादा मुनासिब नहीं है। ये क्यों, ये इंशाल्लाह हम आगे QC 5 में समझेंगे इस बात को। अभी से अगर हम इन बातों पे गौर करना शुरू करेंगे तो हमारी जो सीखने वाली चीजें हैं वो जरा पीछे हो जाएंगी, ठीक है। इन चीजों को भी हम मैम इंशाल्लाह, ये है वहब लना, वहब, वहब नहीं कहना, वहाबा, ठीक है। वहब कहेंगे लेकिन ना ये तो अगला है, अगला हाँ, हाँ जैसे बताइए। एक दुआ है वहब लना मिन लदुनका रहमा। वो हम कहते हैं ए अल्लाह आप अता करें हमें, ठीक है। वो हम अच्छा अल्लाह ताला से कह रहे हैं जी, कि ए अल्लाह आप अता करें हमें अपनी रहमत से, ठीक है। वो फिर माना बदल जाता है, लेकिन कहाँ पर तो हमें उर्दू में दिया गया ना कि अल्लाह ने अता किया हम सबको, ठीक है। अब अल्लाह ने अता किया, इसकी एक और एग्जांपल हम इस तरह से भी समझ लेते हैं, जैसे हमने QC 1 में कहा था, समी अल्लाहु, समी अल्लाहु क्या तर्जमा किया था हमने? सुन लिया सुन ली अल्लाह ने। अल्लाह ने, ठीक है। अब हम कहेंगे वहाबल्लाह, और इसके ऊपर पेश बताएगी अल्लाह ने अता किया, या हम इसको जिस तरह से ये बनाया हम ऐसे भी कह सकते हैं, अता किया अल्लाह ने, ठीक है। अब इसके बाद हम जब ना सिर्फ लगाएंगे तो वो बात कंप्लीट नहीं होगी, तो हम इसको कह देंगे लना, हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हम अब अगर इस ना को पहले लाना चाहते हैं तो फिर हम इसको वहाबा के साथ लगा देंगे, वहाबा और ना, ठीक हो क्या। यहाँ पर जजम नहीं आएगी, जजम उस सूरत में आएगी जैसे हम कहते हैं वहब लना, ठीक है मैम, और हमें अता फरमा, ठीक है। लाना अपनी तरफ से, मिल्लत उनका रहमत रहमत, ठीक है क्या जी सिस्टर्स। मेरा ख्याल हम इसको क्लोज भी कर लेते हैं, बाकी सवाल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, कुछ ग्रुप में कर लेंगे। तो आप इस पूरे वीक में काम कीजिएगा, जब हम वेंसडे वाली भी क्लास कर लेंगे, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि आपका जो 1 2 3 4 उसमें से निकाल के नोट्स अपने बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, जो आपके क्वेश्चन मुझसे पूछने वाले होंगे, जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले होंगे वो क्लास में करेंगे, जो ग्रुप में हम कर सकते हैं ग्रुप में कर लेंगे, और जो आप पर्सनल, ठीक है, 1 on 1 वो हम उसको उस तरह से कर लेंगे। चलिए जी, अब मैं इसको करती हूँ बंद, ताकि इंशाल्लाह मैं भी नमाज पढ़ूं तो आप लोग भी नमाज के लिए चले जाएं, ठीक है जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरे साथ सिस्टर हफ्सा है, सिस्टर अजरा है, सिस्टर विसाल है, सिस्टर मैमूना, और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये जूम हमारे सर इजाज की तरफ से होता है, और जो मेरे टीचर्स हैं जिनके पास मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, और हमारे जो सर हैं सर काशिफ, उनसे मैंने QC 1 स्टार्ट किया था।
ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. الفلاح کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ایک دوسرے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.